विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Krishna, Girashu, you are not audible. Is it better? Yeah, now we can hear. Okay. Sorry. So, I'm sorry. So I was saying that we are just waiting for Mataji. Maybe she'll be here in any moment soon. So please take advantage of association of Mataji, and she's very experienced. And whatever doubts we have, especially regarding preaching, also preaching to family, especially those running Bhakti Vriksha, or any other doubt, she's the best person to answer our question. And more, and also, other than, if you don't have any questions, then please write down whatever Mataji is saying. Don't we should see, mostly what happens, we hear the lecture and then after some time everything is gone. We had a good lecture and it's gone. So jo bhi unhone kal bola, that we must note it down, and we must see after maybe 2-4 दिन के बाद कि वो हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कैसे है. I think Mataji is here. I'm sorry. So Mataji is here. So Hare Krishna, Prempadri Mataji, Dandavat Pranam, all glories to Prabhupada. Yes, Yes, Mataji. all glories to Prabhupada. Yeah. Hare Krishna. How are you, Mataji? You're in Bangalore? Yes. How is it in Delhi? I heard the recovery rate is quite good now, right? I don't know, Mataji, but I think every day some news goes up or down. But still, it is lockdown condition, and they are saying before 3rd May, they may not open anything here. Yeah, that is true for everyone. But after that, let's hope. Yes, Mataji. Let's hope. Yes. Okay. So, So Hare Krishna. yes, Hare Krishna. So we were saying how Om Ajnanatimidandasya Jnana Shalakya Chakshurunmilitamena Tasmai Sri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutali Shrimte Jayapta Swaminati Namne Himachal Padaya Taiku Padaya Purkata Damdaya Nagar Gramtati Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutali Shrimati Bhakti Vedanta Swaminati Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvisesh Sunevadi Paschat Deshtarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So Hare Krishna, and today's very auspicious day, Gadadhar Pandit Prabhu's appearance. So is it today, Mataji, or yesterday? Oh, I thought, was it yesterday? Yesterday, Mataji. Okay. All right. Okay. I think in Mayapur they're celebrating today. Mayapur, it's today. They're celebrating today because they have especially the Shigar of the I think it's today. Okay. Anyway. Yes. So we were discussing yesterday about Chaitanya Mahaprabhu's the prominence and preeminence of Chaitanya Mahaprabhu in our lives and in preaching, which will make a big revolution in our own lives, because the way we look at things and the way we deal with people, our spiritual life, everything, and how we cultivate people, and also in preaching to others, new people, as well as the advancement of the members, everything will undergo a rapid change because of keeping Chaitanya Mahaprabhu as the focus. You can say that. Mataji in Hindi. Oh, I'm sorry, Hindi. Sorry. कि हम जो चैतन्य महाप्रभु को यदि केंद्रित रखेंगे, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हम देखेंगे. हम अपने ये जो बहुत भक्ति जीवन में भी, हमारे एडवांसमेंट में, और हम जिस तरह सब कुछ देखते हैं भगवान के प्रति, हमारे जो ये जो एटीट्यूड है, और बाकी वैष्णवों
के प्रति और दूसरों को भी, नए लोगों के प्रति हम हमारे जो एटीट्यूड है ना, वो क्योंकि हम जैसे ही चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, चैतन्य भागवत, तो उनका जो मूड है ना, चैतन्य महाप्रभु का मूड समझते ही हमारा भी बहुत ओपन हो जाएगा, क्योंकि हम समझेंगे कि हरे कृष्ण मंत्र में सब कुछ है। और चैतन्य महाप्रभु को प्रमोट करने से उनके लिए सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, और हम और ज्यादा टॉलरेंट भी रहेंगे, और ज्यादा हम हेवी प्रीचिंग नहीं करेंगे, ये छोड़ो वो छोड़ो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं करते थे। वो तो सिर्फ प्रेम से लोगों के हृदय को जीत लेते थे, फिर बाद में सब कुछ अपने आप, ज्ञान वैराग्य ऑटोमेटिक, भक्ति यदि किसी को मिल जाता है तो अपने आप ज्ञान और वैराग्य बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये सब जो विषय नॉर्मली हम नहीं फॉलो करते हैं, जो प्रभुपाद ने फॉलो किया ऑफ कोर्स, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी हम भागवतम में पढ़ते हैं, और भागवतम में तो बहुत हैवी है, उसको अडेप्ट करके चैतन्य महाप्रभु एक कलयुग के लिए इतना उनका जो मूड है ना, वो तो राधा रानी का मूड है। तो और एक चीज है कि वो जो भागवतम में सब लिखा हुआ चीज, वो किसके लिए है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऐसे बहुत एलिवेटेड लोगों के लिए। उसको वही हमारा उद्देश्य है, हमारा गोल तो वही है, हम भागवतम का स्टैंडर्ड्स पालन करना है। लेकिन उस स्टार्टिंग में कैसा है कि जैसे हमारा इसमें हमारे देश में रिजर्वेशन है ना, जो दलित लोग और ओबीसीज, उनके लिए रिजर्वेशन होता है, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट, उनको जज करना भी कम होता है, उनका मार्क्स या उनका जो भी होता है, ताकि वो लोग आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने इस युग में तो कौन है ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण क्षत्रिय कोई नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि जो बहुत पतित है उनको पहला मर्सी देते हैं, कृपा, जल्दी आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे सब कुछ विषय है जो अलग है, जो नॉर्मल अलग उस युग में जो भी ये थे ना स्टैंडर्ड्स थे, उसके अनुसार नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु का स्पेशलिटी है, वो तो इतना ट्रांसेंडेंटल रूप से देखते हैं सब कुछ, वर्णाश्रम हो या स्त्री पुरुष हो, सब में आप चैतन्य चरितामृत में देखेंगे उनका ही कहना, और प्रभुपाद जी का भी पर्पोर्ट्स में। तो किस प्रकार हमारा नजर होना चाहिए, ये बहुत आध्यात्मिक स्तर से, और सिर्फ कृष्ण प्रेम की इसमें हम देखने से बहुत जल्दी सबको एम्पावरमेंट मिलता है। उनका ऐसे ही क्योंकि वो जानते थे कि ये कलयुग में ना किसी को पेशेंस नहीं कुछ तपस्या करने के लिए, या बहुत कठिन परिश्रम करने के लिए, उनके पहला फेथ नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा एक चीज दिया जो कोई भी मना नहीं करेंगे, और वो है प्रेम। और इसीलिए हम हर प्रकार के लोगों को, हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में, वो कैसे रेवोल्यूशनरी है और हमारे सोसाइटी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, उसके बारे में कहने से जरूर सुनेंगे। और हरे कृष्ण मंत्र भी जाप करेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर कोटेशंस बताना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु का क्या उद्देश्य था, और किस प्रकार हमारे दुनिया में क्या क्या हो रहा है प्रॉब्लम्स, और इसका सॉल्यूशंस सिर्फ यही हो सकता है। और क्योंकि ये लोगों में ये जो भेदभाव होता है, मत भेद और रिलीजन्स के बीच में जो भेदभाव, ये सब हो रहा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार सबको कन्विंस कर दिया। उन्होंने मुस्लिम्स को भी भक्त बना दिया, बुद्धिस्ट को भी बना दिया, मायावादी लोगों को भी बना दिया। तो ये कैसा हो सकता है? और इतना ही नहीं, सभी लोगों, जितना हजारों लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हुए थे, और उनको ज्यादा फिलॉसफी नहीं बताए वो। पहले तो सभी लोगों को फिलॉसफी कैसे मालूम होगा? वो सिर्फ इस संकीर्तन मूवमेंट से, हरे कृष्ण मंत्र, और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो प्रेम भावना, वो इतने आकर्षित है कि एक बार
मैं प्लेन में जा रही थी इंटरनेशनल फ्लाइट में, तो मेरे बाजू में 2 अमेरिकन बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे और वो हिंदू धर्म के बारे में कुछ बता रहे थे, सम इम्पर्सनलिस्ट। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं इंटरफेयर नहीं किया, वो लोग बातें कर रहे थे। फिर और पीछे भी कुछ लोग थे, उनके फ्रेंड्स। तो जैसे ही जैसे ही मुझे सुनाई दिया कुछ टेम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा आपने इस्कॉन टेम्पल देखे हैं क्या? ऐसे कॉन्वर्सेशन शुरू किया और फिर उनको मैं बताने लगी चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और इतने में क्या हुआ, एयर होस्टेस कुछ पूछना था तो मुझे मेरे साथ बात करने लगी, तो डिस्ट्रैक्शन, आई मीन आधा में ही बंद हो गया कॉन्वर्सेशन इनके साथ। मैं ज्यादा नहीं बताई थी, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए कुछ चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताई थी। और इतने में वो कॉन्वर्सेशन एयर होस्टेस के साथ होने के कारण मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर चुपचाप रह गई। तो ये पीछे से मुझे बुला रही है, बोला वो क्या बोल रही थी आप? कुछ किसके बारे में बता रही थी? तो मैंने सोचा अरे इनको तो मालूम ही नहीं कौन चैतन्य महाप्रभु है, और मैं सिर्फ थोड़ा ही बताई थी और इतना आकर्षित हो गया, और फोटो भी नहीं दिखाई, सिर्फ उनके बारे में बताई। तब से मुझे ये यू नो ये क्योंकि ये तो युग अवतार है और वो अट्रैक्ट कर रहे हैं हर आत्मा को, तो हम सिर्फ बताने से ही उनको इतना आकर्षण होता है कि हम वो उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका जो नेचर है, वो जो मिरेकल्स परफॉर्म किए हैं और उनका किस प्रकार उनका क्या कंपैशन है और संवेदना है लोगों के प्रति, और कैसे भक्त के रूप में आके हमको एक उदाहरण दिए हैं। ये सब सुनने से उनका हृदय, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है आज की दुनिया में, कौन है ऐसा? या कोई हो सकता है क्रिश्चियंस में जीसस क्राइस्ट के बारे में ऐसे बोलते हैं वो बहुत कंपैशनेट है और सबको मर्सी दिया। हाँ, ये लोग भी क्रिश्चियंस थे। और लेकिन शायद हो सकता है क्योंकि वो हमारे जैसे ना और उन लोग कंफ्यूज्ड है, जीसस क्राइस्ट को गॉड भी मानते हैं, लेकिन एक रीजन है, कॉमन क्या है हम वहां से सीख सकते हैं कि आजकल के जीसस क्राइस्ट ना आज के दुनिया के जैसे है, इवन दो 2000 इयर्स बैक, फिर भी वो हम रिलेट कर सकते हैं, और उनकी संवेदना और मिरेकल्स, ये सब इसकी वजह से, और सब लोग उनके बारे में बताने लगे, उनके जीवनी के बारे में, इस प्रकार क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुआ। तो उसी प्रकार हमारे पास चैतन्य महाप्रभु है जो स्वयं भगवान है, इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर है, इतना कंपैशनेट है। और उनका इसके अलावा क्या है, हमारे यहाँ तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में कितने लाखों सालों पहले इनके आने के बारे में जो भविष्यवाणी भी दी गई है, ये एडेड एडवांटेज है। और सब रिकॉर्डेड अकाउंट्स सिर्फ 500 इयर्स बैक उनके पास, तो वो उनका न्यू टेस्टामेंट लिखा गया उनके जाने के बाद, बहुत साल के बाद लिखा गया, तो थोड़ा डिस्क्रिपेंसी भी हो सकता है। लेकिन हमारे इसमें चैतन्य महाप्रभु तो बहुत रीसेंट है, और और हम उनके बारे में पहले ही बताया गया है। ये सब बातें हम लोगों को बताएंगे ना, जो भी हो सकता है कोई इंटेलेक्चुअल्स है तो उनको उनके अनुसार, सब लोग नहीं मानेंगे कि संकीर्तन करो तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे, हाँ, जो ज्ञानी टाइप है ना, वो सोचेंगे ये सिर्फ गाना नाचना ये कैसा सब हो सकता है, ये सिर्फ कम बुद्धिमान के लिए है, ऐसे सोचेंगे। तो इसीलिए हम वो चीजें उनको बताना चाहिए जो चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में इतना बड़े स्कॉलर थे और क्या क्या करते थे, और किस प्रकार उनका जो गया में जाके वापस आने के बाद उन्होंने संकीर्तन ये स्टार्ट किया। और केशव कश्मीरी सबसे ये पंडित दिग्विजयी को उन्होंने बालक के रूप में रहते हुए कैसे हरा दिया। और इतना ही नहीं, किस प्रकार का रेवोल्यूशन स्टार्ट किया,
कि जो काजी ने बंद किया था, और मुस्लिम्स ही नहीं, इवन ब्राह्मण्स जाके कंप्लेन किए थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि पूरा कंट्रोल, हम ही भगवान देवता है, हमारे पास आओ तो हम आपको भगवान तक पहुंचाऊंगा। तो इस प्रकार वो लोग कंट्रोल करना चाहते थे। तो इधर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वो जाति बाति कुछ नहीं देखते थे, हर किसी को ये हरे कृष्ण मंत्र दे रहे थे, और डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए एक तरीका बहुत सिंपल। इसीलिए वो घबरा गए और जाके कंप्लेन किया, और कैसे उन्होंने आंदोलन किया, सब लोग मिलके जाके काजी के पास प्रोटेस्ट में सब लोग डिसोबीडियंस, और वो काजी ने ये आदेश दिया था को कोई मृदंगा नहीं बजाना चाहिए, कोई संकीर्तन नहीं करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा चलो आज ही जाएंगे हम, बिग प्रोसेशन में जाके काजी के पास बहुत पीसफुली उन्होंने डिस्कस किया, कन्विंस किया। और इतना ही नहीं, नरसिम्हदेव भगवान भी उधर थे। आई मीन पहले ही दिन वो उनके ड्रीम में आके सब ये उनको थ्रेटन किया था, आप यदि ऐसे कुछ बंद करेंगे तो मैं छाती से तुमको तुम्हारा छाती को फाड़ दूंगा। इस प्रकार वो भी थोड़ा काजी को ये किया था। तो हमारे इस प्रकार जो हिस्ट्री बताएंगे ना, बहुत दिलचस्पी है, और जो मैसेज है वो भी जैसे तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, वो जो शिक्षाष्टकम का वर्स है ना, वो वर्स एक्चुअली लंदन में ये कृष्णा अवंती स्कूल के बारे में आप शायद सुने होंगे। वो गवर्नमेंट फंडेड है, लेकिन वो सब रिलीजन्स को ये देना चाहते हैं, उनके धर्म के स्कूल होने से उसको फंड करने के लिए तैयार है। तो इस्कॉन स्कूल के लिए भी गवर्नमेंट फंडिंग से वो लोग कृष्णा अवंती स्कूल स्टार्ट किए हैं। उसके 5-6 ब्रांचेस है यूके के अंदर। सो ये मेन फर्स्ट ब्रांच कृष्णा अवंती स्कूल में 80th बर्थडे के समय जो प्रिंस एलिजाबेथ और उनके हस्बैंड को बुलाए थे, और वो उधर पहुंचते ही स्कूल में उन्होंने देखा, पहले एंट्रेंस में ही ये उनका इंग्लिश में अनुवाद, क्या मोटो है स्कूल का, टू बी हम्बलर देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, मोर टॉलरेंट देन अ ट्री, गिविंग ऑल रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिस्पेक्ट फॉर वनसेल्फ। यानी कि सबको हम घास से भी, तृण से भी नम्र, और पेड़ से भी, तरु से भी सहनशील, सबको हम आदर देते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ आदर नहीं मांगते हैं। तो यही था उनका बोर्ड में। और ये देखते ही प्रिंस एलिजाबेथ पढ़ा और वो बहुत इम्प्रेस हो गई, और अपने हस्बैंड से पूछा ये कितना वंडरफुल है ना, बहुत अच्छा है, बहुत इम्प्रेस हो गई। तो ये वैल्यू जो है, ये मिलने से काफी है किसी को एक जेंटलमैन बनने के लिए। ये इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो भी देते हैं ना, सब कैप्सूल फॉर्म में देते हैं। बाकी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ सबसे ज्यादा बड़ा तपस्या क्या होता है, नम्र होना। यदि हम नम्र हो जाएंगे ना, बाकी सब गुण अपने आप आ जाएंगे और भक्ति भी आगे बढ़ेगा। इसीलिए पूरा शिक्षाष्टकम में हमको एक ही एडवाइस देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। वो हम पाने से बस सब कुछ एडवांसमेंट अपने आप आ जाएंगे शिक्षाष्टकम के अनुसार। और उन्होंने कहा कि सेवा करना, विशेषकर वैष्णवों की सेवा, बहुत उसकी इम्पोर्टेंस, महत्व, और स्वयं दिखा के करके दिखाए। ये वैष्णव सेवा जैसे ही जो भी हो सकता है, वैष्णवों की सेवा, उनके मदद करना, या प्रसादम बांटना, या उनका जो प्रचार में भी सेवा, उनके लिए जो भी हेल्प चाहिए वो सब करना, या इस प्रकार करने से हमको बहुत जल्दी कृष्ण भक्ति में टेस्ट मिलती है। ये एक सीक्रेट है। सब कुछ उन्होंने जो भी दिया है चैतन्य महाप्रभु, इस प्रकार दिया है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है मेडिसिन, लेकिन कैप्सूल में डाल के, बहुत आसान है उसको लेने के लिए भी। तो वैष्णव सेवा करना, और नम्रता प्रैक्टिस करना, और प्रचार,
जीव दया और संकीर्तन। ऑफ कोर्स संकीर्तन भी उन्होंने कहा हर घर में शाम के टाइम सब लोग अपने ये सब काम सब पूरा करने के बाद सब मिलके कीर्तन करना, क्योंकि यज्ञ करना तो बहुत आवश्यक है ना। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ भाई विष्णु, विष्णु के यज्ञ करना ही चाहिए। आप यदि इवन भौतिक प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो भी यज्ञ करने की जरूरी है। तो ये संकीर्तन यज्ञ कलयुग के लिए बहुत आसान भी है और बहुत पावरफुल भी है। ऐसे ऐसे चीज हम यदि सब पालन करेंगे ना तो इतना ये हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जो मेंबर्स भी है, नए मेंबर्स भी हो सकते हैं, तो उनको ये हरे कृष्ण मंत्र की ज्यादा महत्व हम बताना चाहिए पहले से ही। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि वो हरे कृष्ण मंत्र शायद वो लोग चांट करने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम फोर्स नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे सोचते हैं। लेकिन हम कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं उसके अनुसार है, उस पर निर्भर है कि वो अपनाएंगे कि नहीं। वो बहुत आवश्यक है उनके लिए। इस पर हमें कुछ भी शक नहीं होना चाहिए कि कितने भी वो क्यों बहुत प्रॉस्परस है, उनके जीवन में अभी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं, फिर भी हरे कृष्ण मंत्र से क्या होता है, आपको तो मंदिर जाने के लिए भी टाइम नहीं है, है ना। आप तो बहुत बिजी है और धार्मिक विषय में भी आपको शायद ज्ञान भी नहीं है। लेकिन हमें तो कुछ कुछ यज्ञ करना ही चाहिए, तभी आपका प्रॉस्पेरिटी और जो भी अच्छे हैप्पीनेस और सब कुछ लास्टिंग होने के लिए तो कुछ ना कुछ आपको टैक्स देना पड़ेगा ना। वो तो लिखा गया है भगवत गीता में, देवता लोग आपको सब कुछ दे रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए टैक्स देना पड़ता है, तो भगवान की गवर्नमेंट में भी टैक्स देना है। तो ये बहुत सिंपल हो गया है, इसीलिए आप चांटिंग करना। तो उनको किसी भी तरह हम छोड़ना नहीं चाहिए कि हाँ मुझे अभी समय नहीं है। समय कितना समय लगता है चांटिंग के लिए? बिल्कुल कम। और इसके लेकिन रिजल्ट्स बहुत ज्यादा होता है। और इस प्रकार हम भगवत गीता, चैतन्य महाप्रभु और हरे कृष्ण मंत्र रख के उनको ये नहीं कर सकते, वो कुछ बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स में हम हाई फिलॉसफी बताने की भी वो बाद में आ सकता है। क्योंकि एनीवे वो रेगुलर प्रोग्राम्स अटेंड करना शुरू करेंगे तो प्रभुपाद जी की फिलॉसफी तो मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी क्या आवश्यकता है? जैसे बच्चे हैं तो हम माँ बाप, स्टूडेंट्स आर अ वेरी गुड वे ऑफ अट्रैक्टिंग, है ना, उनको भक्ति में लाने के लिए। क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे, उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए, वो भगवान के बारे में समझना चाहिए। तो हम यदि कहेंगे कि आप यदि वो हरे कृष्ण मंत्र चांट करेंगे, एक तो उनका चरित्र बहुत अच्छा होगा, दूसरा उनका बुद्धि भी बहुत तेज होगा। क्योंकि कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही बुद्धि हूँ, बुद्धिमान के बुद्धि में मैं हूँ, कुशलता, लोगों की कुशलता भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार उनको बच्चों को भी हम इसमें आकर्षित कर सकते हैं। और युवा तो उनका आजकल तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हमेशा कुछ ना कुछ सोशल मीडिया की वजह से उनका लो सेल्फ एस्टीम होता है, या जैसे ये ज्यादा कंपटीशन की वजह से ये ज्यादा उनको प्रूव करना पड़ता है मार्क्स की ओर से, या उनका गर्लफ्रेंड होना चाहिए, नहीं तो लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे, या इस प्रकार अनेक प्रकार, या वो छोटे गांव से आते हैं, उनके पास ज्यादा पॉकेट मनी नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को फ्रेंड्स का प्रेशर होता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की प्रेशर, या उनके स्टडीज में भी उनका चॉइस के नहीं, माँ बाप और कुछ प्रेशर डालते हैं। तो आप यदि किसी भी युवा से बात करेंगे ना, पहले वो लोग हाँ बहुत हैप्पी दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा बात करने से आपको पता लगेगा कि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ टेंशन है। और इस टेंशन को एंड विशेषकर युवा लोगों को तो पकड़ उनको कन्विंस करना ज्यादा आसान है, क्योंकि वे अभी तक ये सिनिकल नहीं बने हैं। ओह कुछ नहीं चलेगा, सब लोग डोंगे हैं और सब चीटिंग है, इस प्रकार का वो जो
सिनिसिज्म ना, सिनिसिज्म को क्या कहते हैं हिंदी में? cynicism तो माता जी, I also don't know हाँ, cynicism को. अच्छा, But they will understand माता जी. That's okay. ओके। वो भावना नहीं होगी तो उनको हम आइडियलिज्म सिखाएंगे कि क्या चलेगा। वास्तव में सक्सेस के लिए दो चीज की आवश्यकता है। एक तो इंटेग्रिटी, जो भी हम करते हैं वो सत्य रूप में, या किसी को हम प्रॉमिस करते हैं तो वो प्रॉमिस कीप अप करना, या हम झूठ नहीं बोलना। ये सब हम यदि पहले लोग सोच रहे हैं कि झूठ बोलने से ही सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सब वैल्यूज हम और निस्वार्थ भावना से ये हम जो काम करेंगे, क्योंकि भगवत गीता के जो भी ये है ना, जो भी विषय है उसके अनुसार हम यदि काम करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि लास्ट वर्स इन द भगवत गीता क्या कहता है कि व्हाट्स द वर्स? सर्वधर्मान परित्यज्य. नहीं, लास्ट वर्स That Vijay कृष्ण, and Kirti. माता जी, that yatra yogeshwara Krishna. हाँ, यत्र yatra योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयीर Partha Bhutir. भूतिर ध्रुवा Dhruva. नीतिर मतिर्मम। Matur. तो Yes. जहां भी कृष्ण भगवान है और अर्जुन जैसे भक्त है, वहां जरूर ऐश्वर्य, विजय और फिर अच्छे गुण और क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन, ध्रुव, आई मीन दृढ़ निश्चयता, और विक्ट्री, ऑपुलेंस एंड स्ट्रेंथ, सब प्रकार का अच्छे गुण और विजय। अंत में तो जो जहाँ कृष्ण भगवान है उनका ही, तो हमारे साथ कृष्ण भगवान है तो जरूर सब अच्छा ही होगा। तो ये सक्सेस भी, लेकिन सक्सेस के लिए किस प्रकार एटीट्यूड होना चाहिए, जो कृष्ण भगवान अर्जुन को बताया कि तुम सिर्फ काम करो, फल के बारे में मत सोचो। फल तो और अपने को मत समझना कि तुम्हारे वजह से ये सब हो रहा है, हेतु मत समझना, और आलसी भी नहीं रहना। तो ये चार चीज यदि वो अपने काम में लगाएंगे ना कृष्ण के भक्त, और वो करने के लिए भी हम चांटिंग करना पड़ेगा, तभी कृष्ण के प्रति हमें इतना भक्ति या श्रद्धा रहेगी। और काम में यदि हम सोचेंगे कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये कृष्ण को प्लीज करने के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं, और रिजल्ट्स भी ना जो भी कृष्ण भगवान देते हैं वो अच्छा ही होगा। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठेंगे, कुछ अन्याय हो रहा है तो जरूर हम क्लेम कर सकते हैं या अच्छा नौकरी ढूंढ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन जब भी कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ करते हुए भी रिजल्ट्स नहीं आ रहा है उतना जितना हम एफर्ट्स कर रहे हैं, या किसी को और ज्यादा मिल रहा है, अनफेयर हो रहा है, ये सब जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस समय हम ये समझना चाहिए कि मैं तो कृष्ण भगवान के लिए कर रहा हूँ और उनका संतुष्ट ही मेरे लिए सब कुछ है, और वो रिजल्ट्स देंगे, जो भी देना है वो अच्छा ही होगा। और प्राउड भी नहीं होते हैं कि मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है। ये नम्र भावना तभी आएगा जब हमें मालूम होता है कि मैं सिर्फ कृष्ण के माध्यम हूँ, या क्या बोलते हैं उसका बस, अर्जुन तुम निमित्त मात्र हो। तो क्योंकि भगवत गीता ये भी हमें सिखाता है कि 5 कारण है कोई काम करने के लिए। हमारे इंद्रिय और हमारे शरीर और सेंसेस, The body and the senses. बॉडी, सेंसेस, द And super. एंडेवर, जो प्रयत्न करते हैं हमारा आत्मा, और सबसे बड़ा चीज है परमात्मा। परमात्मा जो डायरेक्शंस देते हैं या जो फैसिलिटेट करते हैं उसकी वजह से काम कर सकते हैं। यदि उनका अनुमति नहीं है या वो उनका बुद्धि या डायरेक्शन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम हमेशा ये एक कनेक्शन है
तो हम यदि जाप करेंगे तो इस प्रकार के कनेक्शन से जरूर आप स्ट्रेस नहीं होगा। आप फल के बारे में नहीं चिंता करते हैं तो पूरा अटेंशन दे सकते हैं और जरूर आपका सब काम बहुत अच्छा होगा। और इतना ही नहीं, आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकता है। इसी वजह से काम करना जरूरी है। कृष्ण कहते हैं कि काम करो, क्योंकि तुम्हारा मेंटेनेंस के लिए कम से कम तो करना ही है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करना है, लेकिन ज्ञान के साथ करो तो इससे भी तुम्हें लिबरेशन मिलेगी। तो इस प्रकार, लेकिन वैसे करते करते मटेरियल सक्सेस भी उसकी वजह से ही होगा। कृष्ण के कोऑपरेशन से ही सब कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार हम युवा से भी बात कर सकते हैं, बच्चों से भी, उनका नीड्स क्या है उसके बारे में हम समझना चाहिए कि गृहस्थ लोगों का क्या ये होता है, उनका कंसर्न्स क्या होता है, रिलेशनशिप के बारे में या टेंशन के बारे में, भविष्य के बारे में, या जॉब प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम। तो इन सब विषयों में पहला चीज कृष्ण ने क्या बताया, उपदेश देने के पहले, सब उपदेश उनको एक्सप्लेन करने के पहले कृष्ण भगवान ने उसको ये बताया कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, इसीलिए तुम इतना चिंतित मत रहना। तो उनको वो टेंशन, तो ये स्तर पर आने के लिए बहुत आसान मार्ग है, हरे कृष्ण मंत्र जाप करो तो आप समझेंगे, आपको ये अनुभव होगा कि मैं अलग हूँ। और ये प्रॉब्लम्स जो है वो उसको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें ये ज्ञान है और हम कृष्ण के शरण में आएंगे और ये श्रद्धा, बिलीफ रहेगी कि कृष्ण मेरा जरूर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और स्वयं वो बताते हैं कि जो भी भौतिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो मेरे पास आओगे तो सब प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यदि तुम अहंकार वश नहीं आते हो तो तुम खो जाओगे। तो इस प्रकार हम हर किसी को कुछ ना कुछ चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स तो होता रहता है, और इसके लिए आपको बहुत जरूरी है, भगवत गीता की आवश्यकता है, चैतन्य महाप्रभु की आवश्यकता है, हरे कृष्ण मंत्र की। तो प्रभुपाद ने इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि हर घर में जाके गौर निताई का डॉल्स देना और उनको उनके टेलीविजन सेट के ऊपर डाल देना और बोलना हर रोज ना हरे कृष्ण मंत्र जाप करो इनके सामने। इतना कॉन्फिडेंस था उनको चैतन्य महाप्रभु की पावर में कि वो ऐसे लोग जो मीट ईटिंग सब कुछ, चार नियम तोड़ने वालों के घर में भी वो कहते थे कि गौर निताई को रखना और उनको जाप करने के लिए बोलना, तो इससे भी गौर निताई उनको मर्सी देंगे। तो हम एटलीस्ट एक कार्ड में उनका फोटो दे सकते हैं और कह सकते हैं कि आप चांटिंग करके देखना, एक्सपेरिमेंट करना और हमको बताना क्या क्या हो रहा है आपके जीवन में। तो इस तरह हम उनके संपर्क रख सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं क्या हो रहा है आपके जीवन में, कैसा लगा, आप चांटिंग कर रहे हैं। नहीं तो हमारे जूम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट के लिए रोज चांटिंग करना। इसके लिए स्नान करने के लिए भी जरूरत नहीं, आप सुबह उठते ही मुंह धो के ये माला करना, हरे कृष्ण मंत्र। आप देखिए क्या चमत्कार हो रहा है आपका जीवन में। आपको ये लगेगा, जो चेंज है ना, जो वॉट एवर टेंशन निकल जाता है, या भगवान के प्रति जो श्रद्धा और भक्ति, ये सब आप ही अनुभव करेंगे और हमको बताना। तो इस प्रकार हम उनके जो दैनिक जीवन है उसको हम कैसे, उसके माध्यम से उनको इफेक्ट ला सकते हैं और कैसे जरूरी है उनको। हर किसी को ये बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन है। तो ऐसे हम ये करना है। तो इसके लिए आपको यदि चैतन्य महाप्रभु का लीलाएं मालूम है तो हम उनको ये बीच बीच में उनका लीलाएं भी बताएंगे तो बहुत आकर्षित हो जाएंगे। क्योंकि ये हम सोच रहे हैं कि हम बताना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर रहे हैं, वो स्वयं, क्योंकि वो युग अवतार है, वो हर किसी को अपने बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन वो डिवोटीज को यूज करते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि भगवान मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, तो वो
अरेंज करेंगे जरूर। उनसे हम यदि मांगेंगे, गुरु और गौरंगा दोनों की कृपा से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लोग ऐसे ही आपको जो सेवा हमें मिलता है ये तो ट्रांसेंडेंटल है। ये कोई हम खुद नहीं ढूंढ लेते हैं सेवा। यदि ढूंढने से भी मिलना चाहिए ना, मिलने के लिए तो भगवान की हाथ है। तो बहुत ब्रेक करना चाहिए कि मुझे प्लीज ऐसे लोगों को भेजना जिनको मैं जिनकी देखभाल कर सकूं। और यदि हमें वास्तविक सेवा भावना है तो भगवान जरूर इसका हमारी इच्छा पूरा करेंगे। और क्या हम यही चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें। आप तो इतने महान हैं, आप तो ये युग अवतार है और आपके प्रबल होने से पूरा ये गोल्डन एज शुरू होगा। उन्होंने कहा ना कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन भी यदि कृष्ण कॉन्शियस में है, कृष्ण भावनामृत हरे कृष्णा जाप करेंगे तो ये गोल्डन एज शुरू होगा, जो सत्य युग के जैसे सब कुछ, इवन भौतिक चीज सब अच्छे हो जाएंगे और लोग बहुत धार्मिक धार्मिक बेंट ऑफ माइंड रहेंगे। ऐसा नहीं कि सब लोग हरे कृष्णा ही जाप करेंगे, कुछ लोग अपने अपने चीज भी करेंगे, लेकिन उनका मन बहुत शांत हो जाएगा और सबका सब प्रकार से समृद्धि सुख और जो हेल्थ सब कुछ अच्छा होगा। ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है। और इसके अलावा सब लोग आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ेंगे। तो इसलिए बहुत इमरजेंसी है अभी सबको बताने के लिए, इसलिए अट्रैक्टिव कार्ड है आपके पास और हरे कृष्णा मंत्र भी है, पंचतत्व मंत्र है। ये सब हर कोई ऐसे नहीं होंगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, कोई भी नहीं, वेरी रेयर। कुछ लोग हाँ ऐसे भी है, कुछ भगवान को नहीं मानते हैं या नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग भी है। लेकिन ज्यादातर लोग, इवन भौतिकवादी लोग, अपने हित के लिए कुछ करने के लिए तैयार है। हम है उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब बोलने से शायद वो कुछ लोग तो डरेंगे। कुछ ज्यादा फिलॉसफी नहीं पसंद करते हैं वो, क्योंकि भौतिक लोग ना वो थोड़ा डरते हैं, इसीलिए फिलॉसफी के बारे में पास आने के लिए डरते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि फिर ये कहेंगे ये माया है और हमको इधर मेरे माया से दूर कर देंगे। तो ये भय है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे कृष्ण भगवान भगवत गीता में पहले उन्होंने कहा ठीक है तुम चाहते हो कि इस भौतिक जीवन में बहुत आराम से रहूं, तो उसके लिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा, तो बिना यज्ञ कुछ नहीं मिलेगा। तो ये काफी है लोगों को मन में आश्चर्य, पैसा भी नहीं देना है, सिर्फ ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है, तो ये क्यों ना करूं। क्योंकि आजकल लोग, उनको मालूम है कि योगा मेडिटेशन सब करना है, नहीं तो बहुत टेंशन आ जाता है, बहुत क्रोध आ जाता है, इतना झगड़ा सब जगह हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि लोग हमेशा हाइपर स्टेट में है, कुछ ना कुछ उनके मन में कुछ ना कुछ टेंशन रहता है, और थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, कोई उसको कुछ बता देगा या कुछ इरिटेबल होगा, बस वो एक्सप्लोड हो जाता है। तो उनको वो भी चाहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ माध्यम मिले जिससे मैं शांत रह सकूं। तो और घर में भी हमेशा पति पत्नी के बीच फाइटिंग, सब आर्ग्यूमेंट्स, ये सब इसी की वजह से होता है। और यदि हम कहें कि आपको ना जब भी गुस्सा आता है बात मत कीजिए, जो भी हो, आपके परिवार के लोग भी हो या बाहर के लोग, तो और भी विशेष कर चुपचाप रहना, बात ही नहीं करना, पहला सीधा जाके चांटिंग करना, उसके बाद जब भी शांत हो जाते हैं तभी बात करना, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कुछ झगड़ा ही नहीं होगा, और गुस्सा को बहुत अच्छी तरह से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी कंसर्न्स है ना लोगों की, उसके बारे में, या कुछ यूथ के पास डिप्रेशन, आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हैं। यूथ, आप सोचते होंगे कि यूथ के लिए क्यों उनका अच्छा पढ़ाई है और काम भी अच्छे काम मिलने वाला है, फिर भी डिप्रेस्ड है, और उनको पता ही नहीं क्यों डिप्रेस्ड है।
क्योंकि वैसे हमने पहले डिस्कस किया, बहुत सारे टेंशन्स होते हैं और उसके अलावा ये सोशल मीडिया में तो हर कोई अपने को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाता है। हाँ, मैं इधर गया था, उधर गया, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं इतना स्मार्ट हूँ। तो या अपना गाड़ी या कुछ जो भी है वो फोटो में डालता है तो बाकी लोगों को ऐसा वो तो इतना सक्सेसफुल है, मैं क्या कर पाऊँ, मैं क्यों ऐसा फेलियर हूँ, तो इससे वो डिप्रेस हो जाते हैं। या फिर और एक चीज भी है जो सटल एलिमेंट्स भी है ना, आजकल बहुत नेगेटिव फोर्सेस है, भूत प्रेत भी ऐसे हम देख नहीं सकते हैं। नेगेटिव फोर्सेस, असुरिक फोर्सेस, कली के चेला, वो लोग क्या चाहते हैं कि भक्ति को भंग करने के लिए और लोगों को कब्जा करने के लिए, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग है। तो इसलिए हरे कृष्णा तो जरूर उनके ये नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स भी बहुत सारे लोगों के मन में आता है, वो नहीं चाहते हैं, नेगेटिव थॉट्स सोचना नहीं चाहते हैं, फिर भी आ जाता है। और नेगेटिव थॉट्स आने से हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, मोरोज, हम बहुत पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। तो इसीलिए जैसे ही आपको ये सब थॉट्स आएंगे तो जरूर ये हरे कृष्ण मंत्र जाप करना, तो देखिए कितना ये फुल पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी। तो इस प्रकार हमको हर किसी के साथ पहले हम जब भी किसी से मिलते हैं उनके बारे में हम बहुत कुछ समझना चाहिए। ऐसे नहीं कि इंटरव्यू जैसा, लेकिन हम इंटरेस्ट दिखा सकते हैं उनके बारे में। हाँ, बहुत अच्छा है, जो भी कहते हैं उसका अप्रिशिएट करना और वेरी नेचुरली उनके बारे में पूछना। तो तो हमको हम पहचान सकते हैं कि ठीक है, उनका लाइफ कैसा है और उनका थोड़ा कैसा अभिप्राय है, क्या इंटरेस्ट है, ये सब हम जान सकते हैं। तो उसके बाद हम उसके अनुसार हम उनको टेलर करके दे सकते हैं, जिससे वो आई मीन सब कुछ उसके बारे में बातें कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली तो यही है, चैतन्य महाप्रभु, हरे कृष्ण मंत्र, भगवत गीता और 4 नियम के बाद तो जाइए मत, वो जरूर बाद में आएगा। सब लोग हरे कृष्ण मंत्र यदि कोई जाप करना शुरू करेगा तो 4 नियम बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी पहले किसी से भी, ड्रंकर्ड से भी हम यदि मिलेंगे ना, तो उनको नहीं कहना चाहिए कि फर्स्ट ड्रिंकिंग बंद करो, तो वो सोचेगा ये मुझे नहीं हो रहा है ना। तो प्रभुपाद कितने दयालु थे। एक डिवोटी आके प्रभुपाद से कहा, नए डिवोटी बोल रहे थे, मैं 2-3 राउंड तो करता हूँ, लेकिन मुझे ड्रिंकिंग छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, जब भी आप पीना चाहते हैं ना, तो बॉटल को अपने मन में भगवान के ओर अर्पण करना। ऐसा नहीं कि ऑल्टर में जाके रखो, लेकिन मन में पीने के पहले कृष्ण को अर्पित करके फिर पीना। तो हाँ, डिवोटी सोचा ये बहुत अच्छा सुझाव है। लेकिन जैसे ही वो करने लगा, उसका टेस्ट ही निकल गया, क्योंकि कृष्णा तो प्यूरिफाइंग पर्सन है ना। कृष्ण के बारे में याद करते ही हमारे इंद्रिय, मन सब प्यूरिफाई हो जाता है। तो वो इंटरेस्ट ही खो दिया, छी ये क्यों पीऊं। जल्दी से उसको ये मिल गया फ्रीडम, ये हैबिट से। तो इसलिए जो भी हो, हमारे विशेषकर हमारे परिवार के सदस्यों को तो हम हमेशा चेंज करना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हो, इधर जल्दी उठो, वो करो, ये करो, सब कुछ। लेकिन वो पहले बोलने से सब लोग दूर भाग जाएंगे, ये वो मुझे नहीं चाहिए बाबा, ये इस्कॉन। तो इसलिए हम सिर्फ जो भी उनका हैबिट्स है, इंटरेस्ट है, कुछ नहीं बोलना, एक्सेप्ट करना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को मानने के लिए वो तो सब लोग मान जाएंगे, हरे कृष्ण मंत्र सब लोग मान जाएंगे। यदि उनके लाइफस्टाइल के बारे में आप कुछ कमेंट नहीं देंगे ना, तो वो आपको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो भी वो करते हैं उसको क्रिटिसाइज मत करना। ये नहीं कहना कि आपको मालूम है क्या कहते हैं प्रभुपाद इसके बारे में, नहीं बताना अभी, वो सब जरूरी नहीं है। क्योंकि ये मंत्र और ये चैतन्य महाप्रभु काफी स्ट्रांग है, जो उनके टोटल कॉन्शियसनेस को चेंज कर देंगे। सिर्फ हमको देना है प्रेम, और इससे, और वो सोचेंगे ये लोग चार्ज भी नहीं करते हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं, और
ये कुछ आई मीन ऐसा नहीं, कन्वर्ट भी नहीं करना चाहते हैं मुझे, उनको कुछ इससे पॉलिटिक्स या आई मीन कुछ क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं। तो उनको फिर आपके प्रति विश्वास आएगा कि ये वास्तव में मेरे प्रति कंसर्न रखता है। ऐसा नहीं कि थ्रू मी उसको वो कुछ पाना चाहता है, क्योंकि ज्यादातर बाहर की दुनिया में यही है ना, सब बिजनेस बहुत अच्छा बात करेंगे, वो मुझे सेवा करने की मौका दीजिए, ये सब बताएंगे, लेकिन आपके पर्स को ही देख रहे हैं। ये सेवा करने से निकालिए पैसा, इसके बजाय कोई नहीं करता है। लेकिन हम वास्तव में वो हम हमारे साथ मिलेंगे तो हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं, हम सब फ्री देते हैं, कार्ड लेना, जाट करना, प्रसादम लेना। तो उनको ये होगा कि, और हम ये भी नहीं करते हैं कि कहते हैं कि आप कन्वर्ट करो, आज से आप इस्कॉन डिवोटी हो, वो भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, जो भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन इसको भी ऐड करना है ना। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज क्या कहते हैं, वो तो आके बताएंगे, खंडन करेंगे। हाँ, आपका हिंदू धर्म में क्या बताते हैं, भगवान कैसे चोर हो सकता है, भगवान कैसे दूसरे स्त्रियों के साथ नाच सकते हैं, इस प्रकार बोल के आपको अपने धर्म के प्रति जो फेथ नाश करेंगे पहले, उसके बाद बताएंगे ठीक है आपको पैसा चाहिए हम देंगे, या इस प्रकार। तो और आपको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। तो हमको मालूम है कि हाँ, स्ट्रेट वे सिर्फ कन्वर्जन अपने मेंबर्स बढ़ाने के लिए, लेकिन क्योंकि हेल्पलेस है, कुछ लोगों के पास पैसे की आवश्यकता है या ग्रीड भी है, तो वो मान लेते हैं और कन्वर्ट करते हैं। और इतना ही नहीं, हम वो सोच सकते हैं कि ठीक है, बाहर में हम बताएंगे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन अंदर हमारे हिंदू धर्म पालन करते रहेंगे, ऐसे सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि वो लोग बीच बीच में आके चेक करेंगे आपके घर में क्या हो रहा है, इधर क्या ऑल्टर में कौन है, ये सब देखेंगे। तो हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, टोटल फ्रीडम, प्रेम के साथ वी आर कंसर्न्ड आपके जीवन में क्या हो रहा है, चार्ज भी नहीं कर रहे हैं, और हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आज ही भर्ती कर लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी नहीं। तो इससे जरूर उनका हृदय पिघल जाएगा, जैसे जगाए मदाए के हृदय ना, नित्यानंद प्रभु ने कहा, जब मदाए ने उनके ऊपर ये मटका फेंका इतना जोर से कि खून बहने लगा, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, देखो तुमको क्या होने वाला है तुम्हें मालूम ही नहीं, क्या नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम समझ रहे हो कि तुम मुझे मारोगे तो मैं चुपचाप हो जाऊंगा, मैंने चुपचाप मैं नहीं हूंगा, मैं तो तुम्हारे हित चिंतक हूँ, और मैं यही कहता रहूंगा कि हरे कृष्ण मंत्र जाप करो। तो वो स्तंभित हो गए। ऐसे कोई व्यक्ति हो सकता है क्या कि हम उनको मारने के लिए इतना जोर से मारा, उनका जान भी जाने वाला है, लेकिन ये मेरे बारे में सोच रहा है। तो हम तो इतना पतित लोगों से नहीं मिलते कि वो हमें मारने आए, तो कम से कम हम वो जो भी हमको बताएंगे ना, हाँ तुम लोग ये है वो है, आप लोग ये है, कुछ भी बताएंगे, फिर भी हम ये नहीं हो डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन आई मीन इंस्टेड उनका जीवन में क्या कमी है या क्या बताते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो बहुत प्रेम के साथ प्रसादम देते हैं, प्रसादम देने से ही हाफ द जॉब इज डन, क्योंकि लोग प्रसादम चाहते हैं और इतना ही नहीं मुफ्त में दे रहे हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमेशा हमारे साथ प्रसादम तो होना ही है, होना चाहिए। कुछ भी हो, ड्राइड फ्रूट्स होने से भी काफी है, जैसे किसमिस ना, वो देने से भी लोग बहुत खुश है, कुछ बनाने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रसादम देंगे तो इसमें स्पिरिचुअल पोटेंसी भी है और लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद ये सब हरे कृष्ण कार्ड देना, ये वो, उनके पास बहुत अच्छी तरह से बातें करना, बस उनका और पहली बार ना आप ईमेल, फोन नंबर ये सब ये नहीं करना, क्योंकि चाहिए तो देना, नहीं तो वो सोचेंगे हाँ आजकल तो सब लोग यही करते हैं ना मार्केटिंग, सब अपना हमारे ईमेल और ये चाहते हैं
अपने मार्केटिंग के लिए, इसलिए हमसे ये सब सवाल कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कैसे आप उनका ये रखेंगे? शायद ईमेल ईमेल नहीं माइंड करेंगे। तो इस प्रकार उनसे हर किसी, हम कभी-कभी सबके पास 2-2 मिनट स्पेंड करते हैं। हम सोचते हैं 200 लोगों से के पास बात कर लिया तो बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे, लेकिन कभी-कभी सिर्फ टच एंड गो होने से क्या होता है, किसी को इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम अच्छे एटलीस्ट 5-10 मिनट हर किसी से बातें करना चाहिए, उनका इंटरेस्ट, लाइफ में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। और ये सब फिर बाद में ये बहुत जैसे अच्छी तरह से उनको समझाएंगे तो जरूर वो हमको याद रखेंगे। नहीं तो क्या होता है कि कभी-कभी हम सोचते हैं कि हाँ, मुझे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिले हैं और हम फोन करना शुरू करते हैं। हाँ, आइए आप, मैं आपसे बात किया था ना उस दिन, आपको मालूम है, याद है? तो हमारा अभी प्रोग्राम है, प्लीज आइए। तो बोलेंगे हाँ हाँ जरूर आऊंगा, लेकिन प्रोग्राम के समय में आप देखेंगे वो नहीं आया, कोई भी नहीं। ज्यादा लोग, मुझे मालूम नहीं आपके दिल्ली में कैसा अनुभव है, लेकिन बहुत सारी जगह में ऐसे होता है कि जन्माष्टमी के टाइम इतना कांटेक्ट मिलता है और हम सोचेंगे हाँ इतना लोग मेरा बढ़ जाएंगे, लेकिन जन्माष्टमी के बाद जब भी फोन करते हैं ना, वो बताएंगे भी हाँ हाँ आऊंगा आऊंगा, लेकिन नहीं आते हैं। तो इसके कारण हो सकता है कि हम ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया हर व्यक्ति के पास, और उनका इंटरेस्ट के अनुसार हम बताना चाहिए। और है ना, ज्यादातर लोग क्या पसंद करते हैं वो। हाँ यस प्रभु, आप कुछ बताना चाहते हैं गिरिराज प्रभु? No, नहीं आप, Mata. No, please go ahead, Mata. Nothing. हाँ ओके। और जो लोग क्या पसंद करते हैं, लोग पिकनिक पसंद करते हैं या पार्टी, जस्ट भोजन, भजन और भोजन, वो तो पसंद करते हैं। तो इस प्रकार हम उनको बुलाना चाहिए। बहुत सीरियस प्रोग्राम्स में तो ज्यादातर लोग नहीं आते हैं, है ना आजकल। और नहीं, आपका और अलग एक्सपीरियंस है तो प्लीज शेयर करना। ठीक है, मैं अभी स्टॉप करती हूँ। आप लोग बताना, क्या कुछ सवाल है तो पूछना, नहीं तो आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करना। नो माता जी, थैंक यू सो मच यार, ये तो बहुत अच्छा था। और जो आपने बताया ये दृष्टिकोण ही बिल्कुल डिफरेंट है जैसे हम लोग प्रचार करते हैं। और जैसे आपने बोला कि चैतन्य महाप्रभु को सेंटर में रख के और उन्हीं का भगवान का नाम और चैतन्य महाप्रभु और भगवत गीता, तो वी विल ट्राई माता जी। अभी तक हम लोग जैसे आप लोगों ने बोला कृष्ण का ही ज्यादा बोलते हैं हम लोग, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में लोगों को ज्यादा मालूम ही नहीं है। और हमें भी लगता है कि वो कृष्ण से पीपल कैन रिलेट मोर। बट यू आर राइट, समटाइम्स दे हैव दैट इशू आल्सो कि हम शिव जी को करते हैं, दुर्गा को करते हैं, दे फील कॉन्फ्लिक्ट। बट और स्पेशली जो लोग जो वो हमारे डिवाइस के सेमिनार हैं उसमें आ जाते हैं, उनको तो क्लैरिटी मिल जाती है। बट जो सीधा भक्ति वृक्ष में आते हैं उनको बहुत टाइम लगता है। तो हमने ये भी राधा किशोरी माता जी ने बताया बड़ा अच्छा तरह से, हमने सीखा है कि वो जो 6 डे सेमिनार है जब हम वो करते हैं, then what we get is a good serious seeker. और भक्ति वृक्ष में जब लोग सीधे आते हैं, because they hesitate to share, open their mind, it takes them very very long time. और आपने जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का भी बताया, so that also we will try कि ज्यादा से ज्यादा चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता के और उनकी लीलाओं को भी सुना के we will do this, माता जी। And So one more thing, first question Prabhu, तो कुछ लोग, हाँ yes Prabhu, just one more no, thing go I ahead, wanted to add. yes माता जी। मैं बाद में आप बताइए। जस्ट वन मोर थिंग बिफोर आई फॉरगेट, कि Sure, हम भक्ति वृक्ष चला सकते हैं, लेकिन साथ साथ, क्योंकि भक्ति वृक्ष सीरियस लोगों के लिए है, कुछ लोग तो पहले इतना सीरियस नहीं रहना चाहते हैं, तो उनके लिए मंथली प्रोग्राम या उनके अनुसार, उनके इच्छा के अनुसार
मंथली या फोर्टनाइटली या बाई मंथली जो भी हो, उनके अनुसार हम एक लाइटर प्रोग्राम 1 घंटे का कंटिन्यूस प्रोग्राम रख सकते हैं, ताकि हम उनको नहीं लूज करेंगे। नहीं तो हम ऐसे फिल्टर करते करते जब भक्ति वृक्ष में आते हैं तो बहुत कम लोग हैं, वो क्वालिटी है लेकिन बाकी लोगों को मिस हो जाता है। तो वो आउटरीच प्रोग्राम भी चालू रखना, जो 1 घंटे के लिए उनके इच्छा के अनुसार, आई मीन उनके कन्वीनियंस के अनुसार, महीने में 1 बार या इवन फोर्टनाइट में वंस, ऐसा होने से वो ही बाद में बताएंगे कि हाँ और थोड़ा और ज्यादा टाइम मिलेंगे, इस प्रकार। Okay, Mataji. Yes, that is also. We will follow this, Mataji. क्योंकि जैसे हमारा last device seminar हुआ था, we had around 30 people. Out of 30, what we got was around 8. और जो 30 लोग हैं, they almost came to 3 or 4 days. But वो जो weekly is maybe too much for them. तो we will try it, Mataji. I think this is a good suggestion कि उन लोगों के लिए हम लोग कोई monthly program या bi-monthly रख सकते हैं, lighter program, so where they feel comfortable, and then slowly they can get some taste, Mataji. So thank you so much, Mataji. Very, very nice. और Mataji, एक पहला प्रश्न मेरा ही है आपसे। हम लोग अभी वेब सेमिनार करने लगे हैं, Mataji. तो अभी हम लोग क्योंकि हमें लगा था लॉकडाउन का पीरियड है, तो हम लोग वेब सेमिनार करने लगे हैं, प्राइमरीली टारगेटिंग न्यू पीपल। सो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप रन करते हैं, एडमिन कंट्रोल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम लोग सिर्फ 1-2 भगवद गीता के श्लोक डालते हैं और एक वो प्रभुपाद का उसी श्लोक का लेक्चर डाल देते हैं और 1-2 DT पिक्चर्स डाल देते हैं। तो वो पिछले हम 3-4 महीने से चला रहे हैं। तो अभी हमने उन्हीं ग्रुप्स में डाला कि भी हम सेमिनार करना चाहते हैं। सो वी गॉट सम गुड रिस्पॉन्स। तो यू टेल अस, तो आवर एम इज कि हम लोग जर्नल सेमिनार देंगे और उस जर्नल सेमिनार से हम लोगों के प्रति हम लोग क्यूरियोसिटी करेंगे फॉर द 6 डे सेमिनार, ताकि यही को, और देन वी विल ट्राई कि हाउ द जो ये डिवाइस सेमिनार है कि इसको अगर हम देते हैं जूम के ऊपर तो कैसे चलता है। मतलब वी जस्ट वांट टू ट्राई इट आउट, क्योंकि इट्स अ गुड मीडिया एंड वी डोंट वांट टू लूज ऑनलाइन मीडिया। तो आप कुछ सजेशन करें माता जी, जो ये पहला टॉपिक है जो हम जनरल क्लास ले रहे हैं, उसमें काफी सारे लोगों ने रजिस्टर किया है। ऑलमोस्ट I think 60-70 people have registered, Mataji. They have joined the WhatsApp group also. कि we want to, so what should we speak? And average age, आज हम देख रहे थे, average age is 35-year-old, Mataji. The average age is 35-year-old. 30% are women and 70% are men. So please guide us कि हम क्या टॉपिक लें, क्या हम उनको बोलें जो पहले दिन के लिए one day 1.5 hour seminar. ओके, एक्चुअली डिवाइस में जो भी कवर होता है ना, जैसे साइंटिफिक बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है ना, ऐसे वो सब प्रोफेशनल्स है क्या, थोड़ा एजुकेटेड पीपल है? यस माता जी, मोर और लेस। तो पहले उनको ये एस्टेब्लिश करना चाहिए कि भगवान है ना। कैसे हम मटेरियल नेचर में देख सकते हैं कि सब कुछ कितना ऑर्डर में चलता है और इस प्रकार। और वो डिवाइस में ऐसे ही है ना विषय जो क्यों प्रत्यक्ष, आई मीन 4 नियमों से कैसे हम ज्ञान पाते हैं, इस प्रकार वो सब पिक्चर्स के साथ आप दे सकते हैं। क्योंकि थोड़ा जो इंटेलेक्चुअल्स है ना, वो थोड़ा ज्ञान पसंद करते हैं, है ना। यू कैन डू दैट। सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। एक तो पायस पीपल है जो ऑलरेडी उनको भगवान के प्रति श्रद्धा है, और दूसरा ये जो है जिनको भगवान के बारे में कुछ मालूम नहीं और इतना फेथ भी नहीं। तो 2 different types are there. There is one called the Gauranga modules. I don't know if Radha Kishori has. Radha Kishori, you have it, na? She's there? She's there. Yes, Mataji. I have 2 presentations on Gauranga modules. Okay. There are about 8 weeks of that. Okay. Gauranga modules is there for the people who are not, who believe in God. And that is very nice. Even with 3-4 only, they'll say, वो बताएंगे कि हाँ अभी नो और ज़्यादा ये करेंगे. I mean, they'll commit themselves. Gauranga modules. Then for those who are, this
some, I mean, youth who are very scientific minded people. For those people, you have to do like this only, different topics, either this or, karma, reincarnation, whatever topics you can, more gyan based. Okay, Mataji. Okay. Because we said, जब हमने seminar announce किया था, so we told them कि the seminar is based upon Bhagavad Gita. We ensured कि this is to relate That with is Bhagavad very Gita. good. On Bhagavad Gita, every chapter you can make a synopsis of it and connect it, what the chapter is talking about and how it is connected with their practical life. Okay, Mataji. Okay. ठीक है, Mataji. That And is I very will also popular. take. Yes. We've also done seminars based on Bhagavad Gita, and people really Okay. like it very much. Okay. So make nice presentations and with pictures and all that. And if you explain chapter by chapter, they'll be very happy. Okay. ठीक है, Mataji. Thank you, Mataji. We'll do it. And devotees, does anybody has any question from Mataji? We want to any comment or question we want to ask Mataji, so we can take advantage. Yes, Dev Krishna Prabhu, boliye please. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, Hare Krishna. यस, मेरा क्वेश्चन ये है माता जी कि मेरा एक ग्रुप है कजन वर्ल्ड जो कि मेरे रिलेटिव्स का है, तो उनके लिए मैंने ये DYPH के लिए जो प्रभु जी ने भी किया है तो उसका मैंने इनको डाला था, बट अधिकतर उसमें ऐसे लोग हैं जो ज्ञानी ज्यादा हैं, मतलब उनको पहले से ही सारा ज्ञान है और वो इन सब चीजों को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उनको क्या और आगे प्रीच करना चाहिए या उनको छोड़ देना चाहिए? हाँ, वो आपने किया था DYH कि अभी तक नहीं किया? नहीं, ये जो एक्चुअली मैं उस ग्रुप में ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, रिलेटिव्स का ग्रुप है। कभी कभी मैं भगवत गीता के श्लोकास या प्रभुपाद के अच्छे कोट्स होते हैं या कोई अच्छा वीडियो होता है इस्कॉन का, तो वो कभी कभार डाल देती हूँ। और गिरिराज प्रभु जी ने अभी वो DYPH के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए बोला, तो वो मैंने उसका जो ब्रोशर था वो उसमें डाला, तो कोई रिस्पांस नहीं है ऐसे लोगों का, तो इस तरीके से क्या उनको छोड़ भगवद देना गीता, चाहिए या 1 to 1 फिर इनको ट्राई करना चाहिए? हाँ, तो भगवद गीता का जो ये है ना, वो ट्राई कीजिए। क्योंकि यदि हम उनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं तो उनको कोई विश्वास ही नहीं है स्टार्टिंग में। हाँ, वो अलग अलग लोग जो पायस है ना, वो लोग मान जाएंगे। जो थोड़ा ये स्केप्टिक है ना, जो थोड़ा उनको शंका है, ऐसे लोगों को तो हम फिलॉसफी थोड़ा बताना पड़ता है, लेकिन उसके साथ हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अंत में। तो बिगिनिंग जैसे आई मीन फिलॉसफी पसंद करेंगे या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पसंद करेंगे, तो कैसे लोग हैं वो कि वो आई मीन वे ऑलरेडी रिलीजियस है लेकिन भक्ति नहीं पसंद करते हैं क्या? हाँ, ऐसा है। हाँ, जैसे वो लोग रिचुअलिस्टिक सेरेमनी सब करेंगे, श्राद्ध ऐसे सब करेंगे, लेकिन हाँ, ये सब करेंगे। हाँ, हाँ, दुर्गा पूजा होगी तो उसका घर का वीडियो बना के भेजेंगे, या गणेश स्थापना होगी तो उसका वीडियो बना के भेजेंगे, बट यदि कुछ भक्ति से संबंधित कुछ बताते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके। तो उनको आप ये गौरंगा मॉड्यूल दिखाएंगे तो शायद वो पसंद करेंगे, क्योंकि उनको तो श्रद्धा है देवताओं के प्रति ना। हाँ, हाँ, तो ये पहला राधा किशोर, यू हैव 2 weeks, हाँ, I'll share the whole thing with you and आप देखना, ये पहले मॉड्यूल में ही वो लोग बहुत उनको श्रद्धा आएगी, because we have, it starts with a story, कैसे नारद मुनि ना कृष्ण के आई मीन वो आए और कैसे रुक्मिणी देवी कृष्ण भगवान से रूठी हुई थी, क्योंकि वो सोच कहने लगी कि आप आई मीन वो पास्ट टाइम है ना, जब नारद जी भी आते हैं और वे बोलते हैं कि अभी कलयुग सब शुरू होने वाला है, तो कौन उनको सब बताएंगे, तो कृष्ण भगवान तभी निर्णय लेते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा। उसके बाद ये सब शास्त्र में जो भविष्यवाणी वो सब भी है वो प्रेजेंटेशन में, और फिर उसके बाद एक भगवद गीता श्लोक भी है इस प्रकार, तो शायद वो पसंद करेंगे।
पिक्चर्स के साथ प्रेजेंटेशन। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं माता जी, मेरा कहना ये है कि जैसे DYPH जो अभी कोर्स चालू होने वाला है, हाँ उसके लिए कैसे उनको रजिस्ट्रेशन कराना या उनको किस तरीके से प्रीच करना अभी के लिए? अच्छा नहीं तो आप बताना कि ये तो अम, आपको नॉलेज मिलेगा कि हमारा धर्म पर क्यों हम पालन I mean, जो साइंटिफिक ट्रूथ्स है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन सुपरस्टिशन। आपको पता लगेगा ये बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स, और आपको विश्वास भी मिलेगा, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस मिलेगी भगवान के Yes. बारे में, हमारे धर्म के बारे में, तो शायद वो मानेंगे, है ना। Okay, माता जी, थैंक यू सो मच। Yes, Amit Prabhu, go ahead. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ देन माता जी, मेरा क्वेश्चन है, अभी हमारे एरिया में DYES रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग डोर टू डोर गए थे और हम लोग एक घर में गए, हमने उन्हें पूरा DYES का समझाया बताया और उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया। फिर उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन के बाद वी वर गिविंग वन भगवत गीता और कृष्णा बुक टू देम, टू एवरीबॉडी, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। द मोमेंट वी गेव देम द बुक, they said that you are from ISKCON and we don't do anything with the outside outside societies. We deal only with the Indian temples and all. So what should be our reaction at that time? At that time we said if it is okay, then it's fine. We refund the Lakshmi and we just come out. So what is it the right we no, did but or why are they saying we are not Indian? You should prove that we are Indian. Our headquarters is in Bengal, and Chaitanya Mahaprabhu is the origin. I mean, he's the one who is our what do you call that? The whole person driving this movement, and he's from Bengal. How do they say we are from outside? so we should explain, Mataji. We should not come Of out course, as we it should is. defend ourselves. Otherwise, no, people will spread these lies. No, without Okay. getting angry, you can just say that. See, I think you're mistaken. The whole movement is started from India, and this is all started with. Then it's a good opportunity to talk about Chaitanya Mahaprabhu. Who is Chaitanya Mahaprabhu? Why he came? All that. Krishna himself to teach the Bhagavad Gita. It's become so simple and all that. Depending on, you have to always judge them, what level they are, what is their interest, and accordingly, you should defend yourself and explain what is ISKCON. Then they may change their mind. Because people spread these rumors, na? Without knowing anything properly, they will say like that. Like how when we were, I was joining the Dhammarudham, this movie Devanand's film was there, and we really thought that all these hippies, I mean foreigners, no, all of them are this thing. They are just drug addicts. That's the message. People are always trying to say spread some rumor like that. And we used to go to the Juhu temple. We used to like going, but we used to keep looking. Who could be a CIA spy? Because this is the rumor they sent, So we used to really think, oh, maybe this guy is from CIA, agent like that. So we have to explain to them. Okay, Mataji. Then I remember that house. So whenever lockdown opens, you can go and discuss with them. Yeah. And one more thing, what people like is yagnas. If you have any Brahmin person who does these, of course, in the temples also you must be having some person who does yagnas, homas. Yes, Mataji. Pujaris are there, Mataji. Pujaris. Even that is very, if they can explain nicely, some of these types, who are, who wouldn't like to come for regular programs and all that, you would tell them we are doing a Sudarshan Homa or whatever, Narsimha Homa, and they will explain everything to you. They get very impressed that because in ISKCON we don't do like these other pandits, simply do something fast and we explain nicely, we are inviting Krishna to come here and this and all that. We did that with our family. They wouldn't, they don't want this ISKCON. So we had a homa in our house, and the
pujaris, ISKCON pujaris, they explained so nicely. They were impressed. For the first time, we were so surprised. They were so impressed with ISKCON. So that is for also one kind of people. Of course, through that, then they are ready to accept other things of ISKCON. Otherwise, people just think, oh, ISKCON means simply singing and dancing and prasadam. That we have so many other things of Vedic religion also, especially this Homa. Then they think, oh, they have Homas and all. They're chanting Sanskrit, this thing. So then they get impressed. So also we can. Thank you, Mataji. Yes, Anita Mataji. Hare Krishna Mataji, all glories to Srila Prabhupada. Thank you so much, Mataji, for all valuable informations. The session was so inspiring. So my question is that yesterday you asked that how much time it takes a person to become a devotee. So what my experience is that it depends person to person. Sometimes people are so enthusiastic in the beginning and gradually then their interest goes down. And sometimes few people join with no interest, but gradually they start taking interest. They start taking interest in chanting, reading, offering bhoga. So, so can you please guide us that how to cultivate them so that they remain connected? How to cultivate them, how to build one-to-one relationship with them, how to serve them. Yeah, so this why Chaitanya Mahaprabhu works is because of personalism. We have to be very personal with people and not interfering. I mean, personal means like, very one-to-one, very, very, what do you call that? Very direct and very simple and casual, not, very, which brings us closer. So the first thing is, and being a very good listener. We have to listen to people because we think that, okay, we have some knowledge, we have to give it to them. And then, so then what happens is we don't know anything about them. So we don't know what actually they are requiring. So it's very important to be a good listener and to hear from them, whatever they're saying. Then we will be able to help them and guide them. So being a good listener. And then, so whenever you meet them, to build the trust, because first of all, they will trust you so much just because you listen to them, that you're showing interest in them, because most people don't have time to give you, attentive to what you're saying. But if you show interest in whatever they're saying and you listen, then they immediately develop so much trust in you that you really care for them and you're interested in them. Then, so they will start revealing more things and you'll come to know them much better. And to always show some appreciation, to respect them, respect everyone. That is one thing, they feel so happy that you really genuinely care and respect them, whatever they are. You accept them as they are and you don't make judgments. See, sometimes, we are drawn towards some people we automatically don't like, or we think, oh, they've got some bad habits or something. Or they may be, their nature may be like that, very bossy or whatever. Whatever it is, you have to go beyond that and respect everyone equally, in the sense that some people are very good, so you appreciate them. And some people may not be, they may have some negative traits, but still you overlook that. Maybe you can help them, correct them and all that, but you see what's good in them and you appreciate. So in a positive way, you're always encouraging people, then they want to give out their best. Then if they feel that you're always appreciating and encouraging, then when you tell them some mistake, they will agree, yes, okay, I will change. That's very important. Otherwise they'll think you're just critical, because most people love to criticize and people don't like to listen to any criticism. And that's why we have to always use the sandwich technique, which is first appreciate them, and then you tell them you want to help them. We are not criticizing them to put them down. And then finally end up with some nice, again, another positive, encouraging note. Then they feel very happy to
implement whatever you say. See, we can keep on raising the bar, make them more and more idealistic. For that, you have to win their trust, and they have to feel that you really care for them. We have to start caring for their actual upliftment. So that means it takes a lot of time also. Sometimes you have to listen and all that, but it's a very good investment. Don't think it's a waste of time. What is this? I thought it was just the meeting, and then what they call me and I have to listen to them and so on. No, it pays a lot. Just by that one listening, you have won their hearts and they're ready to, listen. In one listening, this is how Krishna also won over Arjuna, no? He didn't speak a word. Arjuna was going on, talking all lamentation. Krishna was just patiently listening. And finally, Arjuna surrendered, and then Krishna took over, and Arjuna, of course, he convinced him very nicely. So the same psychology works for everyone. You be very patient and listen, and people finished. They change. Even someone very disturbed, but that listening is without making judgments of them. We don't want to be judgmental. That means good, bad. Oh, maybe they did it right. Oh, why did he do that? Maybe he is this. No, we are trying to understand them from their point of view, what they're going through. That's all. Empathic listening. That means we are trying to put ourselves in their shoes and seeing what are they feeling. Something like a drama artist. Okay, he is always, he knows, there is nothing common with what that character is, but he's able to empathize with that role. In the same way, when you show empathy, people respond very positively. And then, so another thing is, you keep, whenever you meet them, you always ask them, how are they doing? How's your family? How's your child now? Is it okay? You said they were not well, something, whatever it is, that is personalism. Being concerned, not only, okay, you and me, we are Krishna conscious devotees, so we'll only talk about the, activities, devotional activities. I'll never inquire anything about your family or your job or your whatever. It's not like that. It's a full package. A person is not only soul floating around, he's got a body. And so you can show concern, then they will be very happy. That is personalism. Impersonalism means I'll not inquire anything about your other activities. So we have to bring about, and Chaitanya Mahaprabhu was very concerned, not only with spiritual, he, Vasudeva Datta, he was a wonderful devotee, of course, and he was always helping others and all that. But in his personal life, he was a married man, grahastha with many children, but he never saved his money. Always in the first part of the month, he gets the salary, and before the middle of the month, there won't be any savings for his family. So Chaitanya Mahaprabhu used to keep telling him, you're a grahastha, you should not be like this. But then finally, because it was his nature, so he told the Shivananda Sen, who was a businessman, and he was very expert. So he told him, you take care of his finances. Whatever, I don't know how that is. Maybe he took over his salary and released it, or what it was. And this one, what's his name? Srivas Thakur gave him place in his own, compound, some place to stay, like that. So he was very much concerned about people's material lives also. So if we show interest in that, they become so happy. Then it becomes a family kind of relationship, where they can talk freely with you. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. And I hope you have picnics and all that from time to time. Yes. No, Mataji, not picnics actually. You'll go to Vrindavan, right? Yes. No, Vrindavan is good. That also makes you come closer because you're going on a pilgrimage. But also sometimes you should have, I remember Radhakishori Mataji told me once that in a building, they arranged some kind of a fun fair or something like that. And after that, the building people became so happy, isn't it? It was like a picnic, and even the husbands, they were showing interest to join. So picnic is, suppose only Matajis are coming or only Prabhus are coming and this other spouse is not coming. If you have a small picnic nearby park, you don't have to go far away.
and it's easy to arrange because transportation is minimal, very nearby, and you can make everyone get something, they make a juice or sandwich and chips and all that, which everybody can bring. And just go there and have nice some games and kirtan, of course, first starting with kirtan, and then games and quiz and sharing of realizations. Then, and you tell them you can bring all your family members, friends also. So because it's a picnic, they wouldn't mind. Everyone will like to join. But after the picnic, everybody will feel so close to each other because they're sharing so much. Because every time we come to the program, there is no time to interact and know each other. And after that, you'll see many of them who came now simply for a picnic. They'll say, oh, okay, it's nice. Actually, you people are full of fun. I'll join your group. So it's a good way to get remaining family members as well as friends to come. So have picnics also. It's not difficult. You don't do anything. The new people are full of ideas. Let them do. You only have to make sure that it's very Krishna conscious, that we have kirtans, that we have quiz and all that, that it's Krishna conscious quiz. And you have dumb charades and all that. So they will do some acting, some quiz based on Rama and Mahabharata, like this. And then there's a lot of interaction. That really helps a lot in increasing the enthusiasm level of the devotees. And of course, through Zoom chanting is the first step to bring everyone together on a spiritual platform to, make progress. Okay, thank you so much, Mataji. Definitely, we look forward to have picnics. Thank you so much. Yes, Megha Mataji. Hare Krishna, Mataji. Dandavat Pranam. Thank you so much for the wonderful lecture. Mataji, I have one question. कि जैसे बहुत सारे लोगों से कई बार हम मिलते हैं कि they are very sad in their life and we want कि उन्हें कुछ ये चीज मिले कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाएं. तो आई हैव एन एक्सपीरियंस है कि मैं कुछ लोगों से मिली थी एंड मैंने उन्हें थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश की थी कि पहले उनसे पूछा था उनके बारे में कि आप क्या करते हैं, मतलब कौन से भगवान को मानते हैं, किस तरीके से करते हैं. तो उन्होंने बताया कि मैं इन गुरु जी को मानती हूँ, ऐसे मानती हूँ. तो देन आई सेड कि ओके इट इज गुड, लेकिन इसके साथ साथ आप हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप कीजिए, लाइक दैट. तो और हम क्या कर सकते हैं उनको और बूस्ट करने के लिए कि वो इस चीज की तरफ और अट्रैक्ट हो थोड़ा, बिकॉज इट्स तो मच सेंटिमेंट्स की वो लोग इस चीज को बहुत आसानी से नहीं एक्सेप्ट करते. तो प्लीज गाइड मी कि मैं उन लोगों को कैसे और गाइड कर सकती हूँ इस चीज के लिए. हाँ, एक्चुअली सॉरी मैं समझी नहीं. प्रभु आप के संक्षेप में व्हाट वाज द क्वेश्चन? In a friend circle, he speaks and try to preach to them, and they're demigod worshippers. So she said she asked them to chant Hare Krishna Mahamantra. Some accept, some don't accept. So she's saying, what else I can do for the friend circle, who are pious, but not so much connected with bhakti. So she does is she tells them to chant the Hare Krishna Mahamantra. She's saying, is there something else I can do for them, for such group of friends? वो लोग भजन गाने के लिए पसंद करेंगे तो संकीर्तन कर सकते हैं ना, कीर्तन. Megha Mataji? Actually, Mataji, there are some circumstances like कि जैसे randomly हम किसी से मिलते हैं randomly, मतलब वो घर पे नहीं आते हैं, but randomly मिलते हैं वो लोग. तो they are basically professional person. तो कोई कहीं काम करते तो कोई कहीं काम करते, तो they have no time. तो मतलब लाइक मैंने उनको एक बार बोला भी था, इनवाइट किया था, बट दे डिनाइड कि अभी टाइम नहीं है ये सब चीजों के लिए. तो दैट्स अ प्रॉब्लम. माताजी, ऐसे लोगों के लिए ही अभी जूम ना, इतना दिन हम लोग जूम यूज करने के लिए तैयार नहीं थे. हम सोचते थे कि सामने बैठ के बात करने से ही ये सब चलेगा. अभी ना जूम में सब लोग तैयार है. तो ऐसे लोग जिनके बहुत बिजी है और दूर रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप एक जूम प्रोग्राम जरूर शुरू करना. ओके माताजी.
तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं उनके इच्छा के अनुसार, भगवत गीता पढ़ सकते हैं या भगवत गीता संक्षेप में, तो वो और नहीं तो भक्ति वृक्षा भी ना कैसे कर सकते हैं जूम में, आप जैसे प्रेजेंटेशन जैसे पॉइंट्स लिखना और उसको ये प्रेजेंट करना और पिक्चर्स भी लगाना, तो ये भक्ति वृक्ष में जो पॉइंट्स है ना वो बहुत सिंपल है एक्चुअली। तो उनको आप यदि प्रेजेंटेशन के रूप में एक बताना कि हाँ पहले ना 8 वीक कोर्स ही है श्रद्धावान कोर्स, तो वो खत्म करेंगे तो बताना हाँ और एक 8 वीक्स का है कृष्ण सेवक, तो इस तरह आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं यदि, क्योंकि कुछ लोग ना पूरी तरह से कमिट करने के लिए थोड़ा हिचकेंगे, तो उनके लिए ऐसे कोर्स बता के आप 8 वीक कोर्स 8 हाँ ऐसे कर सकते हैं। Okay, Mataji, thank you so much, Mataji. Any other question? Or anybody wants to thank Mataji? Sarita Mataji, you want to say something? How was the session? Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So, Hare Krishna Mataji. My realization after listening this course is, I found that sometimes I feel that I am getting pressurized by the things, and that makes me put off sometime. Pressurized by what? She gets put off, she says. By what? Put off by what? By pressure. Some pressures, I would say. So, but listening your speech, your lecture, made me really a different, and I feel yes, reading Chaitanya Mahaprabhu's stories would definitely help everyone. I would say for me, yes, it will help me because we do not know about Krishna, we do not know about Ram. But Chaitanya Mahaprabhu appeared just 500 back on this planet. So can relate very well with the Chaitanya Mahaprabhu. So this gave me a tremendous help to, I would say, to consider or to comprehend. So, I really found it very, easy to comprehend about it. Very nice. Actually, ये पूरा चैतन्य चरितामृत तो आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके घर में ना आप ये जो अब्रिज्ड वर्जन भी पढ़ सकते हैं रोज, जैसे चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य भागवत और ऑल्सो गौरंगा बुक है, ये सब अब्रिज्ड वर्जन है ना पूर्ण प्रज्ञदास का, आप देखे हैं चैतन्य चरितामृत एंड सो वो आप वो भी आप पढ़ सकते हैं ताकि ये स्टोरीज ना आपको याद रहेगा, तो अपने लिए भी और दूसरों को शेयर करने के लिए भी बहुत मदद आएगा। Mataji, also I was thinking even Guru Nanak Dev appeared just 500 back, and same way Chaitanya Mahaprabhu appeared 500 back. Yes. So Guru Nanak Dev has, I mean, Sikh people are 3 crores in the world, and we ISKCON people are just, I think, 1 lakh, because we are thinking about Krishna, we are thinking about Ram, we are thinking about Narsingh Dev, we are thinking about this, we are thinking about that. So our minds do not, comprehend on a certain thing. So if we think about only Chaitanya Mahaprabhu and his teachings and how he attained these all things, so we can same way we can also go on the same path, no? Yes, that is true. He will be very attractive because he's very contemporary. People will relate with him. Yeah. Thank you, Mataji. Hare Krishna. So, thank you so very much, Mataji. We are very grateful to you for giving us 2 days. And I think हम जिन सब लोगों ने भी सुना, all of us will take back home something from these sessions. So we are very, very grateful.
and I will request Radha Kishori Mataji ko, I've requested her that we can have for the Bhakti Vriksha leaders in Gurugram, that we can have a class. I spoke to Ramesh Girdhari Prabhu also yesterday. He agreed. So we will coordinate, Mataji, to have more sessions and to learn from experience. There is so much experience. We don't need to do with hit and trial. So I myself feel very enlivened with these two sessions. So thank you so very much, Mataji. We are very, very grateful to you and to Radha Kishori Mataji also. Hare Krishna. Hare Krishna to all of you. Thank you. It's wonderful. Thank you very much, Prabhu. Yes. Thank you, Mataji. Mataji is left? Yes. Should I close? We can close. So, Hare Krishna. So, thank you so much, devotees. I'm very grateful कि आप लोग सब आए, और I hope कि आप सब लोगों को sessions ये अच्छे लगे होंगे, कि जो कैसे माता जी का जो focus था, so much about all of us, feel enlivened in our heart. And so, thank you so much. And evening, we have class by Parmeshwari Mataji. So, I request all of you, please come and hear from her. So, thank you so very much. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna.